Okay, first of all, we will define what is mechanism of labor. Mechanism of labor is the series of events which occur during the passage of the fetal head from the maternal pelvis. Okay? It has different steps. First step is the engagement. What is the definition of engagement? Engagement means when more than 3/5 of the fetal head had entered in the maternal pelvis. Only 2/5 or less than 2/5 is palpable abdominally. This is called as the engagement. After engagement, due to the uterine contractions and under the effect of gravity, fetal head descent down in the maternal pelvis. That is the second step of the labor of mechanism of labor. Due to descent, head touches the pelvic floor and there is contraction of the pelvic floor musculature which promotes flexion on the fetal head. After flexion, head continues to descend and rotate in the maternal cavity in such a way that occiput comes just behind the pubic symphysis. Right? Occiput, ये triangle. Yes. After that, when patient is having uterine contraction adequately, this head continues to descend and escapes the maternal pelvic outlet. And at this point, crowning of the fetal head occurs. With subsequent contractions, head escapes and delivers by the extension of the fetal neck. As soon as the head delivers, head align with the shoulders which are in the oblique direction by 1/8 rotation of the fetal head in such a way that head aligns with the fetal shoulder. With subsequent contractions, head rotate further externally by 45 degrees in such a way that occiput lies either to the right side of the maternal or in the left side, and anterior shoulder comes just behind the pubic symphysis. This is called as the external rotation. After that, the remaining part of the body, that is shoulder and fetus, delivered by anterior shoulder delivered by gentle downward and backward direction, then posterior shoulder delivered by upward and forward direction, and then is the delivery of the remaining parts of the fetus. Thank you. अच्छा मैम, जो उसके स्टेजेस थे, सबसे पहला वाला स्टेज जो आपने बताया था, पहला वाला स्टेज था एंगेजमेंट. उसमें हम बच्चे को सीधा इस तरह करेंगे मैम. ठीक है. इस तरह कर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. ट्रांसवर्स ये है ना, तो ट्रांसवर्स ऐसे करना है. ऑक्सीपिट और ट्रांसवर्स. अच्छा, ये ट्रांसवर्स होगा. ठीक है, समझ गई. ये ट्रांसवर्स, ये स्टेज 1 हो गया. इसके बाद मैम फिर स्टेज 2 आता है. नहीं, अभी एंगेज पूरी करो. अभी एंगेज ऐसे करेंगे कि सारे इसका हमने अंदर डाल दिया. ये इस तरह हमारा स्टेज. ये यहाँ तक ना, ये एंगेजमेंट है. यहाँ तक. ठीक है. कान और ये प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ये अलाइन करे, लेकिन थोड़ा सा फासला है. लेस देन 2. डिसेंट. ये डिसेंट स्टेज 2 हो गया हमारा. ये स्टेज 2 हो गया. उसके बाद स्टेज 3 हमारे पास था फ्लेक्शन में आपने कहा था वो जो इसका चिन्ह है, इसको हमने इस चेस्ट के साथ लगाना है. हाँ, लेकिन चिन्ह वो होगी, फ्लेक्शन क्यों होगी? फ्लेक्शन ठीक है. ड्यू टू द डिसेंट ऑफ द fetal head when the occiput touches the pelvic floor muscles, it causes contraction of the muscles of the internal या pelvic cavity. ठीक है. That lead to the flexion of the fetal head. ये मैंने टच कर दिया, इसका जो चिन्ह है वो चेस्ट के साथ टच कर दिया. ये स्टेज 3 होगी. तो अब इसको और नीचे पुश करूंगा मैम. जी. ये और थोड़ा सा चला गया. स्टेज 3 नहीं, स्टेप 3 है. स्टेप 3 सॉरी. स्टेज तो लेपर्स का. ठीक है. उसके बाद देन इंटरनल रोटेशन. फिर इसको मुंह
प्यूबिक सिम्फिसिस की तरफ घुमाना है मैम, हाँ ठीक। देन ऑक्सीपिट अच्छा, जो है occiput, ना पीछे विल की तरफ। रोटेट इस तरह internally इंटरनल in such a way that occiput lies just behind the pubic symphysis. लाइज जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस। ये क्लिक पॉइंट हो गया, ये जी। हमारा स्टेज 4 हो Step स्टेप five, हाँ जी। 4 में। Then स्टेप 5 है हमारे पास, वो है एक्सटेंशन। जी एक्सटेंशन में और by maternal contractions मैटरनल कॉन्ट्रैक्शन, head descends and escapes the pelvic outlet आउटलेट एस्केप कर दिया हेड में एक्सटेंशन में। and ठीक है, एक्सटेंशन में पेल्विक आउटलेट हेड ने एस्केप कर लिया। जी। ये हमारा क्लिक पॉइंट हो गया स्टेप 5 का। उसके बाद स्टेप 6 हमारे पास होगा एक्सटर्नल No. नहीं, restitution रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन में जो हेड जो है 1/4 होता है साइकिल, यानी कि 45 डिग्री रोटेट करता है और साथ और body भी शोल्डर जो rotate। होते हैं वो अलाइन कर लेते हैं शोल्डर इसके साथ अलाइन कर सकते हैं। इसको हेड के साथ, ठीक है? अच्छा, शोल्डर और ये जो पॉइंट नहीं, नहीं, वैसे neck- अगर याद रखने के लिए ये कौन सी हमें नजर आ रही होती है पर ठीक, शोल्डर्स अलाइन कर लेते हैं हेड को। व्हेन बेबी हेड रोटेट 1/8 of the cycle, that is 45 degree, in such way shoulders align with the fetal head. फीटल हेड अलाइन हो गया इस तरह। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटर्नल रोटेशन के नाम हाँ, से अब है? एक्सटर्नल रोटेशन है ना। अच्छा, एक्सटर्नल रोटेशन में हेड रोटेट्स फर्दर 45। अब यहाँ पे पहले था 45 का एंगल, अब फर्दर 45 डिग्री रोटेट करेगा यस मैम। in such a way that occiput either comes on the right side of the mother or on the left side, ठीक है? उस तरह से जो है ना ये इजी हमारे लिए and रहेगा। baby shoulder come just behind the pubic symphysis, ठीक जस्ट है? बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस आ गई, ये क्लिक पॉइंट है। ठीक है। Resuscitation। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द शोल्डर बाय द इंटीरियर शोल्डर बाय जेंटल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन जनरल डाउनवर्ड, एंड देन ये posterior shoulder by gentle upward and forward direction, और ये हमारे सारे and then स्टेजेस delivery of the baby. कंप्लीट डिलीवरी बाय। For example, ये occiput है ना, occiput maternal pelvis के posterior side पे है, ठीक है? तो इसको कहेंगे occipito posterior position, ठीक है? ये occipito transverse, लेकिन अब कौन सा occiput किस साइड पे है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, लेकिन ये किस साइड पे है? मदर के राइट, मदर की लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ये राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, और ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, ठीक है? तो आप पोजीशन की डेफिनेशन समझ आती है आप लोगों को? नेगोशिएटिंग विद द मैटरनल पेल्विस, ठीक है? अब ये निगोशिएशन जो है वो बेबी की जो है ना, वो बेबी की नेक के साथ एंगल के साथ रिलेट कर रही होती है, ठीक है? जब ये इस तरह से ये इसके नेक और हेड में के बीच में कोई एंगल है, कौन सा है? 180 की डिग्री पे है ना नेक और, ठीक है? बिल्कुल उसके ऊपर ही है ना, ठीक है? ये होगा तो अब कैसे होगा? फ्लेक्शन आ जाएगा ना, जैसे ये जॉइंट है फ्लेक्स हो गया ना, 180 कैसे है? सीधी लाइन, अच्छा। सीधी लाइन, नेक और हेड के तरफ। नेक और हेड के तरफ, ठीक है? और ये अभी वो एंगल जो है वो रिड्यूस हो गया। जैसे ये देखो ना, इसमें ये कौन सी बोन है? ह्यूमरस, और ये ठीक है? तो इनके दरमियान में जब ये 90 का एंगल आ गया ना, ठीक है? जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? फ्लेक्शन, ठीक है? और जब बढ़ जाएगा तो ये एक्सटेंशन, सेम लाइक दिस है, ठीक है? इसमें वैसे नॉर्मली जो होता है, जब नॉर्मल है उसका पोजीशन, दैट इज 180 के एंगल पे, ठीक? जब वो एंगल रिड्यूस हो जाएगा तो फ्लेक्शन हो जाएगी, और जब एंगल बढ़ जाएगा मोर देन 180 तो एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है? अब नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन है वो कफेलिक है, नॉर्मल जो लाई है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, और नॉर्मल जो पोजीशन है वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, ठीक है? बाकी जो सारे हैं उसके सब नॉर्मल्स हैं, एबनॉर्मल नहीं है लेकिन सब नॉर्मल है।
नहीं खुद सोचो नॉर्मल ये चीज सीधी है ना, ठीक है, और हेड नीचे डिलीवर होता है कफेलिक और ऑक्सीपिटल इंटीरियर पोजीशन है नॉर्मल, ठीक है। जो लेबर तो भी हम जो लेबर मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे वो कफेलिक प्रेजेंटेशन का, लॉन्गिट्यूडनल लाई का और ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स का पढ़ेंगे, ठीक है। यस उससे पहले आप ये डायमीटर्स पढ़ लें इनके, पहले इसकी बताएं। जैसे इसके हमने पार्ट्स देखे, इस वाली बोन को क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन, ठीक है। और ये वाली जो दोनों बोन्स हैं इनको क्या कहते हैं, पैराइटल, और पीछे वाली ऑक्सीपिटल, और ये वाली टेम्पोरल, और ये जो है ज़ाइगोमैटिक है, ठीक है। तो अब इनके डायमीटर्स, जैसे उधर हमने डायमीटर्स किए, इधर भी डायमीटर्स करने हैं, ठीक है। तो एक पैराइटल बोन के दूसरे पैराइटल बोन तक का जो डायमीटर है दैट इज कॉल्ड एज द बायपैराइटल डायमीटर, ठीक है। बायपैराइटल कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे भी चलते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है ना, यहाँ बड़ा था नीचे आ गया। ये वाला बायोटेम्पोरल ये भी नहीं क्लास है, पिछली क्लास के अटेंडेंस में मैं आ गया एक खत्म हो गई इसके तो फिर पैराइटल से लेकर दूसरे पैराइटल तक 9.5 सेंटीमीटर। नहीं उसको क्या कहते हैं, बाई ये दो पैराइटल ना, बाई ट्वाइस होता ना। ठीक है, अब उसके बाद नीचे कौन सी बोल है, टेम्पोरल, वो बाई टेम्पोरल डायमीटर 9.5 8.5, ठीक है। और फिर बाई मैस्टॉइड, बाई ज़ाइगोमैटिक दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एक पैराइटल बोन दूसरे पैराइटल बोन के साथ किस सूचर के साथ जुड़ी हुई है, ये वो नेट में रिवाइज कर रहे हैं, सैजिटल। पैराइटल बोन फ्रंटल बोन के साथ किस जॉइंट के साथ जुड़ी हुई है, कॉर्नर, ठीक है। तो अब और ये फ्रंटल बोन फ्यूज हो गई है, ठीक है। ये दो फ्रंटल बोन थी लेकिन फ्यूज होके एक ही बोन नजर आती है, ठीक है। तो इन दोनों तीनों जॉइंट्स के दरमियान में पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के दरमियान में जो सूचर्स हैं that are the coronal suture and sagittal suture। तो इनके दरमियान में एक डायमंड शेप्ड फॉन्टेनेले आता है जिसको इंटीरियर फॉन्टेनेले कहते हैं और ब्रैगमा भी कहते हैं, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है इस फॉन्टेनेले की, लेटर इन लाइफ क्लोज होता है। बेबी जो है ना वो 18 मंथ्स 24 मंथ का होगा तो फिर ये फ्यूज होगा। लेबर में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें पोजीशन बताएगा। इसको फील करते हुए हम देखेंगे कि ये अगर फॉन्टेनेले इस साइड पे है तो ये इसका मतलब ऑक्सीपिटल दूसरी साइड पे है, ठीक है। और अगर दोनों ऐसे रिलेट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स में है, ठीक है। और अगर आपको फॉन्टेनेले पोस्टीरियरली फील हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीपिटल इंटीरियर पे है, और अगर आपको ये फॉन्टेनेले इंटीरियरली फील हो रहा है तो ऑक्सीपिटल बैक साइड में है। यानी कि इसकी लेबर में सिग्निफिकेंस ये है कि बेबी की पोजीशन बताने में हमें हेल्प करना है, ठीक है। उसके बाद ये पीछे जो सूचर है लैम्डोइड सूचर, लैम्डोइड सूचर कौन सी दो बोन के दरमियान में, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। इन दोनों के बीच में जो सूचर होगा दैट इज द ट्रायंगुलर सूचर, ठीक है। वो बर्थ के इमीडिएटली क्लोज हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर फॉन्टेनेले और लैम्डा, इसको लैम्डा और ये ब्रैगमा। इंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेले इंटीरियर फॉन्टेनेले, ठीक है। इंटीरियर फॉन्टेनेले वही है ना वो जो ट्रायंगल बना हुआ है, हाँ ये वाला पोस्टीरियर, ये पीछे वही डायमंड, समझ रहे आगे है तो समझ। अब उसके बाद ये है कि आप देखो, आप बुक निकालो, एक बुक पे आपके वो एक टेबल सा बना हुआ है, ये टेबल है जिसमें तीन चार बेबी की पिक्चर। अब देखो जब जो है ना वो इस तरह से बेबी बहुत वेल फ्लैट सेंटर होगा तो प्रेजेंटेशन जो आएगी ये आएगी वर्टेक्स, ठीक है। उसमें जो डायमीटर प्रेजेंट कर रहा होगा ना ऑक्सीपिट से लेके ऑक्सीपिट से
ट्रिपल ऑक्सीपिट इसमें इंक्लूड होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, यानी ये जब बेबी ऐसे एंटर आता है तो इसका मतलब ये पार्ट एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। तो इसमें बेबी की प्रेजेंटेशन क्या है, वर्टिक्स आ रहा है, ये ना हेड वर्टिक्स प्रेजेंटेशन। डायमीटर कौन सा हो गया, 9.5 नहीं मेजरमेंट नहीं पूछ रही, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, और वो 9.5 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट, ठीक है। अब अगर आप मैटरनल पेल्विस को रिवाइज करो तो इसमें मिनिमम क्या था 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 11 में से 9.5 तो इजीली डिलीवर हो जाएगा ना। ये इन डायमीटर हमने फैसला करना है कि ये बेबी डिलीवर हो सकेगा इस पेल्विस में कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 9.5 पास आउट हो जाएगा ना, ठीक। फिर उसके बाद अगर इसकी फ्लेक्शन खत्म हो जाए, ठीक है, पहले वेल फ्लेक्स था ना, अब फ्लेक्शन खत्म होगी, ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल देखो क्या है 11 है, 11.5 तो 11.5 गुजर जाएगा, मिनिमम 11 मिनिमम एक डायमीटर पेल्विस का 11 भी है, ठीक है। तो उसमें से नहीं पास आउट होगा, ठीक है। फिर पहले यहाँ पे ये फ्लेक्स था, डिफ्लेक्स हुआ, फिर पार्शियल एक्सटेंशन हो गया, 13 पॉइंट ठीक है। पार्शियल एक्सटेंशन से डायमीटर जो आएगा बढ़ गया ऑक्सीपिट से लेके चीन तक, 13 सेंटीमीटर या मेंटम से वर्टिक्स तक कर लो तो इसको कहते हैं मेंटो वर्टिकल, मेंटम वर्टिक्स, मेंटो वर्टिकल, ठीक है। दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें जो प्रेजेंटेशन आती है ये पार्ट आता है बेबी का ब्रो, तो वो भी डिलीवर नहीं होता, ठीक है। अब जब कंप्लीट एक्सटेंशन होगी, कंप्लीट एक्सटेंशन से अगेन ये डायमीटर आ जाएगा चिन से लेके बिलो चिन ब्रैगमा तक, ठीक है। तो ये सब मेंटो, ये इन बेबी के पार्ट से ही है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक। वो जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक था वो भी 9.5 था, ये भी 9.5 है, ठीक है। तो 9.5 यानी कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और सब मेंटो ब्रैगमेटिक दोनों की मेजरमेंट 9.5 है। एक में बेबी वर्टेक्स में आता है, दूसरे में बेबी फेस में आता है, ठीक है। ये दोनों डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई है? यस मैम आज वो किधर गई है? नोट है ना वो दूसरी बच्ची जो उस दिन थी, नहीं एक दिन पहले दिन आई थी फ्राइडे को। नूर कौन है? आप? नहीं आप तो आई थी। मैं वो अपने फॉन्टेनेली के साथ कुछ बताया था कि फॉन्टेनेली से हमें रिस्पेक्टिवली ये चीज़ जान सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो आपने एग्जामिनेशन कर रहे हो, इंटीरियर आपको फॉन्टेनेली का फील होगा, ठीक है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपको कैसे? आपने बताया था कि उसके ऑपोजिट ऑपोजिट वर्टेक्स है ना, हाँ ठीक है। ये पार्ट वर्टेक्स है, यस ठीक मैम है। इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको ऑक्सीपिटो मेरे अपने सेंसिटिव के बाद अगर ये हिंट देगा सेंसिपुट ना, ऑक्सीपिट सेंसिपुट। तो ये इसका मतलब है ये कि इसमें ये वर्टिक्स है, और वर्टिक्स दोनों आपको इधर पोस्टीरियर फॉन्टेनेले फील हो गए इधर, तो ये ट्रांसवर्स हो गया ना बेबी। यस मैम ट्रांसवर्स हो गया, ट्रांसवर्स में फॉन्टेनेले जिस साइड पे इंटीरियर है उसके ऑपोजिट है, तो राइट लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ठीक है। ये अब किधर हुआ? पोस्टीरियर ब्रैगमा आपको पोस्टीरियरली फील हो रहा है, Yes, तो उसका ma'am. मतलब है ऑक्सीपिट इंटीरियर पे है, तो ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियरली आपको ब्रैगमा फील हुआ, यहाँ देखा डायरेक्ट वो एक होल है, डिप है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये ऑक्सीपिट पोस्टीरियर साइड पे, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा बार बार करोगे ना तो आ जाएगा। सबमेंटो ब्रैगमेट हो ना, तो उसमें कौन सा? सबमेंटो ब्रैगमेटिक उसकी पोजीशन कैसे करनी है, ठीक है। अब उसमें ना बेबी ऐसे आना है, ठीक है, ऐसे, Pragmatic ठीक है। में। इसमें आपके पास फेस आना है, हाँ तो वो तो नहीं करना। तो फेस की पोजीशन ये वो सिर्फ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की पोजीशन है, ठीक है।
इसमें तो अपने डायमीटर यहाँ इसका डिनोमिनेटर ये चिन्ह है, इसको आपने चिन्ह में देखना है कि ये जो चिन्ह है, यानी कि ये जो सबमेंटो ब्रैगमेटिक है वो पोस्टीरियर पे है या एंटीरियर पे है, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस हर प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर है, इसका ब्रैगमा था और इसका जो है ना वो है चिन्ह है। इसको चिन्ह के लिहाज से आपने देखना है कि ये चिन्ह पोस्टीरियर साइड पे है या चिन्ह एंटीरियर साइड पे है। ठीक है, ऐसे यहाँ आपको चिन्ह फील होगी या चिन्ह आपको इधर फील होगी। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ लेबर, लास्ट जो टॉपिक है। व्हाट इज एंगेजमेंट? जब more than 2/3 of the head Enters the pelvis. मोर देन 3/4, ठीक है। ओनली इसको कहते हैं लेस देन 2/5 इज पैल्पेबल एब्डोमिनली। ठीक है, लेस देन 2/5। तो अगर मोर देन 2/5 एंटर हो चुका हुआ है तो 350 होगा ना, फिर उसको कहेंगे एंगेजमेंट। ठीक है, अब इसका ट्रांसवर्स डायमीटर सब इसका ज़्यादा है ना, ये वाला डायमीटर एंट्रोपोस्टीरियर ऑक्सीपिटो सेंसिव उठना। ठीक है, तो इधर यहाँ पे मैटरनल पेल्विस का ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा था, तो ये इसमें मैटरनल पेल्विस में एंटर हो जाएगा इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, यस प्राइमरी ग्रेविडा में यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में लेबर कर रही है उसमें एंगेजमेंट यूजली 2 to 3 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाती है। ठीक है, और जो मल्टी ग्रेविडा है वो लेबर के साथ एंगेजमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये एंगेजमेंट, अब उसके बाद बेबी ने डिसेंट करना है। डिसेंट किसके इफेक्ट में करेगा? एक तो कॉन्ट्रैक्शंस है ना, कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो पुश करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब, तो उसका जो पार्ट है वो नीचे जाता है। ठीक है, इसी तरह से ग्रेविटी के इफेक्ट में भी बेबी डाउनवर्ड जा रहा होता है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस बेबी जो है वो मैटरनल पेल्विस की तरफ डिसेंट करेगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया डिसेंट। फर्स्ट इज द एंगेजमेंट, सेकंड इज द डिसेंट। अब जब डिसेंट होगा तो ये उसके बाद उसने बेबी ने टच करना है, ये कैविटी में आ गया ना, तो कैविटी के मसल्स को टच करेगा। ठीक है, तो हमारे मसल्स को क्या होता है, जब हम मसल्स टच होता है क्या होता है, एकदम रिफ्लेक्स आता है ना, कॉन्ट्रैक्शन आती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्पेस कम हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगी तो ये फ्लेक्शन हो जाएगी। तुम लोगों को तो समझ आता है, ये कहाँ से आ गया? फोर्थ ईयर में आता है। ठीक है, ये फ्लेक्शन होगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन होगी तो ये जो ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स में था वो डायरेक्ट बिहाइंड द पेल्विक सिम्फिसिस आ गया। ठीक है, फर्दर डिसेंट कंटिन्यू हुआ तो ये हेड एस्केप कर लेगा पेल्विक कैविटी, पेल्विक आउटलेट को। ठीक है, तो क्रॉनिंग हो जाएगी। क्रॉनिंग जैसे मजीद कॉन्ट्रैक्शन आई, डिसेंट हुआ तो हेड एक्सटेंशन से हेड डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन और उसके बाद एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये सारी जो मूवमेंट्स थी ये सारी अभी तक हेड पे हुई हैं। शोल्डर्स जो है वो वैसे ही ऑब्लिक में पड़े हुए थे। ठीक है, अब शोल्डर्स ने अपने आप को मैटरनल पेल्विस के साथ अलाइन किया ऐसे। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टिट्यूशन। उसके बाद अब शोल्डर्स ने डिलीवर होना है, हेड डिलीवर हो चुका ना, तो शोल्डर्स भी ये बायक्रोमियल डायमीटर ज़्यादा है, तो शोल्डर को भी इस तरह करने के लिए एक शोल्डर एंटीरियरली और एक शोल्डर पोस्टीरियरली। ठीक है, तो ये साथ ही ये ऐसे पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जैसे बेबी ऐसे था ऐसे होना है, तो एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन से क्या हुआ कि एक शोल्डर जो है एंटीरियर हो गया, एक शोल्डर पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, और देन आप डिलीवरी करोगे इंटीरियर शोल्डर की एंड फिर पोस्टीरियर शोल्डर की। यानी इसमें आपने जेंटल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर दिया, इसमें अपवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रेशर दिया पोस्टीरियर शोल्डर की, और फिर बॉडी। ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब तुम लोग ऐसे करो, 12 बज गया ना। मैम अभी आपने ना सारी नॉटमी बता दी, वो तो हमारी बेसिक हमें पता है। बाकी पोजीशनिंग जो है, लाइंग जो है, और मतलब आपने प्रेजेंटेशन का बताया, वो तो आसान है, वो तो समझ आ गई हमें।
मैम इसको ना हेड को हम आर्बिट्ररी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि एंगेजमेंट हम कब मैम करेंगे, ठीक है। सॉरी जी हाँ, मैम, अगर ये सारे पॉइंट्स हम इनकी वीडियो में सिर्फ आपके ये हैंड से कर ठीक है, कोई बात नहीं। शायद इसकी वीडियो बनाओ, शायद आपकी उसमें है ना। और मैम बस आप सारा एक्सप्लेन